This conference will now be recorded. Sure, we are getting ready. Already YouTube, we are live to the world. We are just invite for the Facebook also to fall in live. Many more messages started flooding. Yeah, close. Yes, welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello and a warm welcome to our good guest. Why I say good guest? Because he always thinks good of humanity. And he always feels when the society needs, we should be in Dr. Reddy. I am there with you. And he's none other than Dr. Arvind Kushwaha from All India Institute of Medical Sciences, Nagpur. Like his guru, we all adore our public health Galib, Dr. Amitav Banerjee ji. At that age, he says, ready, come on, let us present something so that people get enlightened. No impositions, no prejudiced things. Similarly, we have Dr. Arvind Kushwaha from All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Nagpur. Sir, welcome to you once again. A warm welcome. Such an important topic. Thank you, sir. Yeah. Before I get Dr. Kushwaha ji, some things for your public knowledge. How we said topsy-turvy or U-turn the world has taken, right from CDC, America, to Indian Council of Medical Research. Don't forget, Public Health Galib. We went extempore on Saturday. The same was repeated on Sunday too, morning. Earlier too, with all these wonderful guests, we were exposing unscientific, illogical, where there is no proper data to say these diseases, strains of COVID-19 are fatal or very dangerous on their own. But they have taken 2 years. 2 years of public life. Many were killed. I should say it is nothing but mayhem, literal murders, because science was not practiced. Logic was not at all there. A sensible approach based on the evidences was never practiced because a doctor's oath is do no harm. But what happened? All these so-called bureaucrats, politicians, they're pepped up media. Every time these are 1 case, 100 cases, 200 cases, we are challenging them. Where are the cases? Right from Delhi to Gully, that's what we ask honorable chief ministers of the state. Come on, panchayat wise, district wise, state wise, you release the names of those, not those celebrities. Now this corona is only for cinema artists. It has become a big drama. Now even politicians are competing. They are getting, yeah, I'm tested positive, I'm getting admitted. I'm tested positive, I'm getting admitted. What is this nonsense going on? Lakhs of people, you attend rally in the morning, Delhi CM goes and says, I am affected. I says, I am recovering. Now I have recovered. How did you recover? First, what were the presenting symptoms, Honorable Chief Minister? You tell us. Where did you contract? Yes, Dr. Arvind ji. पहले इसका आप एक टिप्पणी बोलिए, बाद में हमारी डिस्कशन में ये आपका ये ऑन कर लीजिए ऑडियो, ये टिप्पणी. He becomes negative within 24-48 hours only. केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी जब पूरा लुट गया उसका 2 साल से, खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया, रोजगारी खत्म हो गया. आप लाखों रैली अटेंड करते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब में और चंडीगढ़ में, आप लड़ते हैं, आपके मेयर होते होते हुए आपके कैंडिडेट बच गए. लेकिन आप दिल्ली आते वापिस, दिल्ली में हल्ला मचाते हो. आप ही नहीं, राहुल गांधी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हर कोई लीडर, रोज ना रोज एक लीडर. अब चैलेंज हो गया, पॉलिटिशियंस वर्सेस सिनेमा आर्टिस्ट. क्या ड्रामा. ये ड्रामा के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्योंकि कल के दिन ट्रायल होगा, न्यूमरबर्ग कोड, याद रखिए, झूठा ही साबित होगा. साइंस
विज्ञान और वैज्ञान वो आधार के साथ साबित होगा तो झूठ का झूठ पक्का, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इसीलिए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो बोलता है कि जिसके लक्षण नहीं है, रोग लक्षण नहीं है, उनको हम परीक्षा नहीं करेंगे। Those asymptomatic cases, we are not going to test what the hell you are doing for 2 years. Is it not a fact? Even after this also, daily you see Delhi, though they are coming down still in thousands. Maharashtra coming down still in thousands. अरे भाई बताओ किस जगह कौन से लोग थे, वो लोग सही कोरोना से ही एडमिट हुए? Are they real cases of corona, COVID-19 or some with comorbidities? I'll play this video. You see how CDC to ICM are playing tantrums with public life. That is why this show is very, very important. This is what, are you able to hear, sir? Yes. Yeah, because I can't see the network video. problems have started to happen, but still we are not going to go away. We will play. See, they are trying to create problems. This is what happens when we announce a show. All of a sudden, network issue. See, it is hanging. My system is hanging. Light might go. Light might go, as we have done. कुछ भी होने दो, we are there to do the live show. Light जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी आज करके ही रहेंगे. See how slow network connection, this fellow Jio, all सब मिलके है, ये सब मिलके इतने कंप्लेंट्स देते, फिर भी देखिए, I don't understand how. Are you able to hear, sir? Yeah, I am able to hear you. Yeah, I am able to hear you. आप कुछ भी करिए, हम शो बनाएंगे यार. पैसे देके तो नेटवर्क लिए है, कहाँ का जियो है, लूट रहा पब्लिक को, सर्विस नहीं है. कितने बार कंप्लेंट करना, वर्कर्स अच्छे हैं. किस तरह रेट बढ़ा है जियो का रेट बढ़ता है, और जियो के मालिक हमारे मुकेश अंबानी न्यूयॉर्क में एक नई होटल खरीदते, यहाँ लोग सफर हो रहे. ये है जिंदगी. इस तरह की कहीं नहीं देख सकते आप. इसी तरह हर एक देश में अमीर जो अमीर हो गया, Absolutely. rich has become Leo Rich. He is buying bloody New York. He is buying hotels. From where did he get this money? Is it not because of pandemic? You made online and 28 days instead of 30 days, and you are looting, no service. You are collecting huge money, and government is selling public sector units when it is pandemic time. Nonsense, absolutely trash. Yes, sir. You can comment on that. Basically, rich getting richer and a poor getting poorer. That is, the social divide is increasing day by day. So I am quoting this as shared by our honorable guest. Joe Rogan shared this to his Instagram story. If you have to be persuaded, reminded, pressured, lied to, incentivized, coerced, bullied, socially shamed, guilt tripped, threatened, punished, and criminalized, if all of this is considered necessary to gain your compliance, you can be absolutely certain that what is being promoted is not in your best interest. Ian Watson, what will you say, sir? We are trying to present. Absolutely spot on. What he has said is very correct. Like, it is like saying anybody can look after my interest better than me. It can be only one person in this world, and that is your own mother or your own parents. Nobody else on this earth can look after your interest other than yourself. जंगल का So, सबसे government बड़ा is trying जानवर to tell कभी me भी शेर होता ही government नहीं. is looking after my interest. It's not truth. Yeah, go ahead, sir. Vaccine passports violate your rights. Police here, British Columbia, in Canada, British Columbia state, even police have come to the roads. Now I hope Indian police, because politicians now, drama, artists, celebrities, and their pepped up media have started to play tantrums again when there is none. See, police is there. They are trying to say vaccine passports violate your rights. Police from British Columbia state in Canada. Yes, sir, your comments. Firstly, sir, which vaccine passport? The vaccine doesn't prevent infection, doesn't stop जंगल का transmission. सबसे How can it be called a passport?
The very concept of vaccine passport has been debunked by the failure of the vaccines in preventing infection and preventing the transmission. So it is not a passport at all. It's a fake passport. तो आप बताएंगे ना ये अपना ACMR का? I did not show it, no sir. Latest order. Sir. You're going to show that na, in your presentation? No, I'm going to highlight that main findings of that. That's all. Yeah, you can, because ICMR has come out very clearly on 10th of January. No more testing of asymptomatic patients, because we are not trying to show that. Wasting time. Instead, we thought we will just try to show you headlines. Now we said the world is protesting. The Djokovic story proves just what we are getting wrong about the unvaccinated. Tempting as it may be to dismiss these comments as wellness quackery, they highlight a lesser discussed tranche of the unjabbed, the homeopaths hell-bent on fighting the virus naturally, writes Charlotte Lytton. This we are not trying to say. This is from Telegraph. Because you know, Australia open, he came, he said, I'm already infected, why the hell I should be tested, and why the hell I should show you vaccine certificate? When I'm already gone through natural infection, I have natural immunity. And who are you when I don't have symptoms? Why should you test me? Yes, sir. I salute this guy, sir. I am myself a tennis player, and I salute this guy. No wonder he is one of the most favorite players of the current times. No doubt about that. And I really salute his, I would say, his courage, moral courage, to stand up to the authoritarian, baseless, unscientific approach by the Australian government. And no wonder he has won. Wonderful. He has won the case in Australia's court. And here you see another Madhya Pradesh minister on why she doesn't wear mask. We have to salute such type of wonderful people. In India too, we have to salute this minister. We salute her. She says, Madhya Pradesh Minister Usha Thakur replied to a query on not wearing a mask amid a rise in COVID-19 cases by claiming her immunity was strong as she had been practicing Agnihotra or healing fire, a ritual done to purify the air and surroundings for the past 30 years. This is what we are saying. Our natural immunity is stronger. We breathe fresh air. We adopt so many things from yoga to other breathing exercises. We have our natural immunity. See, our Honorable Prime Minister, he doesn't wear a mask. And I've shown you many world leaders also. Only when they come in front of media, they try to wear masks. Then why the hell they are forcing it upon us? What is this nonsense? Yes, sir, your comment. See, the point is, suppose I'm not wearing mask, but the other people who feel that wearing mask is essential, they are all wearing it. So why should they feel threatened from me? They are wearing mask, they are protected. Why should they feel threatened if I don't wear a mask? It's my choice. I mean, I should be allowed to. I have, like, for example, I have recovered from COVID. I've just told you. I have my antibodies. My chances of reinfection is virtually nil. Why should I continue to wear mask? You tell me. There is no scientific reason to continue to wear mask. You are unnecessarily, asking a person to keep breathing his expired air, which is not good. Yeah, that is wonderful. Don't we think we should salute this minister from our country for really coming out so boldly? Now, what will you say, Indian Council of Medical Research, Shivraj Patil ji, Maharashtra Chief Minister or Honorable Prime Minister or Union Home Minister, because from there the Pandemic Act or Disaster Management Act happens. What will you say about this minister now? Am I right, sir? Why are you trying to threaten? Right. See, the point is, it has been almost 2 years now. In this country, almost everybody has got COVID once or maybe immunization. So there is no need to unnecessarily force mandates. There is no need at all. Let people choose. If they want to follow a mandate, fine. But you cannot force it down somebody's throat. So this is what 10th January 2022 ICMR. It is on your screen. This is a big exposure. Who may be tested? Symptomatic cough, fever, at risk contact of laboratory, and then individuals undertaking international travel. This is also nonsense. If they don't present any symptoms, why the hell they should be tested? What is this nonsense? International travelers arriving, when they are coming from there, overnight it will change.
I don't understand. In hospital settings. And the other one, this is what I was trying to tell you. I'll show you the other one also. People who need not be tested, asymptomatic individuals in community settings, contacts of confirmed cases of COVID-19 unless identified as high risk based on age or comorbidities, patients who stand discharged as per home isolation guidelines, patients being discharged from a COVID-19 facility as per revised discharge policy, individuals undertaking interstate domestic travels, they need not be tested now. It is a big exposure on your screen. If anyone is trying to ask even interstate travel, file a criminal case and go for damage suits. Yes, sir. Your take on this? So I'll be presenting my PPT on this, so we'll discuss this in this Done. detail. Yeah. So before now, last one I'll show. So this is hypocrisy at its worst, and then I'll show you this. Achha, I'll show you this first. How in Bengaluru they're carefully testing. See, these fellows should ಕೊರೋನಾ be ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿಗೆ ಅಂಜಿದ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಒಂದೆಡೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಜನ ಬೆದರಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರತ್ ಪೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡುವವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಜನ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Avamaniya. These fellows should be put. These are the fellows. See how he's trying to. Right to Honorable Chief Minister of Karnataka. What is this happening in Bengaluru? They are destroying the name of Bengaluru. What is this nonsense? Where is the logic? Why are you forcing him to be tested? ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? MP, ಆರಕ್ಷಕರನ್ನ Bengaluru ಕರೆಸಿ municipal, ಕ್ರಮ these fellows should be ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು booked. ಅಲ್ವೇ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ These ಹೇಳೋದು fellows ನಿಮ್ should ಧರ್ಮ, not be allowed to come ಮಾಡಿಸುವುದು out. ಬಿಡೋದು Damages should ಅವರ be ಕರ್ಮ. filed. ಈ So that ರೀತಿ this ಹೊಡೆದು is not the ಬಡೆದು fellows who are ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ creating ಮಾಡಿಸೋಕೆ panic, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ unnecessary panic. ಕೊಟ್ಟವರು See, what ಯಾರು? is this nonsense? ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ ಗುಪ್ತಾ, Bengaluru ನಾಗರತ್ Mahapalika ಪೇಟ್ Ayukta ಪರೀಕ್ಷಾ Gupta and ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ these ನಡೆದ fellows should be booked. ಘಟನೆಗೆ ನಾವು These ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. fellows should be booked. ಬಲವಂತದ Yes, sir. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ He's a ನಾವು youngster. ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. That ಇದಕ್ಕೆ is what we are saying. ಕಾರಣವೇನು? That ಯಾರು creating panic to ಜವಾಬ್ದಾರರು? sell ಹಾಗೆಯೇ vaccines. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ Or, yeah, on ಘಟನೆ the youngsters. ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ They want to ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ create this ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. panic so that youngsters will come forward to take this vaccine. Nonsense is about it. These fellows should be. The Indian Council of Medical Research, the Indian government is sincere. They have released the guidelines. These fellows should be. Not only that, damages should be made to pay because this is creating panic, unnecessary panic. All those real people who need test, they will not come forward now. Right, sir? This is utter nonsense and ridiculous to say the least, because if these kind of young people who are neither going to be affected by COVID, neither there is any reason to force anything on them. This is looking like as if we are living in a state of banana republic and maybe some kind of emergency going on like in 1975 or something. If this is not emergency, what emergency is? I mean, unnecessarily people are being forced to do something against their own will. They are being forced to take vaccines. I mean, you cannot do that. They cannot be tested just because you feel like that. This is utter nonsense. And if you don't take community along, you will never succeed in any pandemic control. If you do not take the community along, you will never succeed in pandemic control. And no wonder it is 2 years we are still fighting it. Wonderful. Now I hope Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister will enforce this Epidemic Act or Disaster Management Act on this Bengaluru Mahapalika, whether it is Gupta or others, and so that this will become an example for the entire country. If you are seriously implementing ICMR January 10th guidelines,
what is the action you are going to take? Is it the way to coerce people? You want to sell vaccines for youngsters in the age group? That is the reason why you have to test. That is why we are having all the doubts on RT-PCR test. RT-PCR, how truthful or correct this test is. Now we will listen from, this is our Deshi drama. Now we'll go to Videshi drama, CDC, because we copy from them. We're going to turn right now to that fight against COVID and the fast-spreading Omicron variant. Joining us this morning is the director of the CDC, Dr. Rochelle Walensky. Dr. Walensky, I want to dive right in. Thanks so much for being with us this morning. Your agency, you know this, is facing a lot of criticism over these new guidelines over isolation and not requiring a 5-day test to get out of those isolations. The American Medical Association is going as far as saying they're not only confusing, but they risk spreading this virus even further. Are they wrong? Let me just clarify and say isolation. We talk about isolation in the context of people who've had a positive test, who know that they are infected, and we have now dozens of studies referenced on the CDC website that have demonstrated that you are most infectious in the 1 to 2 days before your symptoms and the 2 to 3 days after your symptoms. So by 5 days. Kindly listen to this. She says you are infectious in these 2 days. I'm going to pray because something very fishy is going to come up later. Everyone who is watching this, kindly understand how they are trying to fool us. So by 5 days after your symptoms, the vast majority of your contagiousness is really behind you. And what we say at day 5 then is, are your symptoms gone? Are you feeling better? Is your cough gone? Sore throat gone? And if so, then it is safe to go out if you are wearing a mask all the time. And that means not going out to restaurants, not going out to gyms, not going in visiting grandma, but really conscientiously wearing your mask for those last 5 days. Now, some have said that they are interested in using an antigen or a home test at the end of those 5 days. And if people are interested. Now, this is what they are going to sell. Antigen home test nonsense. And again, masking. We'll come back to that. Just listen to this carefully. I hope the viewers will have understand. access, then they may choose to take that extra step and do that antigen test. We've provided some guidance as to how to interpret that. And that means that if that test is positive, you should stay home for those extra 5 days. But if that test is negative, you should go out and continue to wear your mask. Now, I've read the AMA statement and I have deep respect for the AMA, but I will also say we've heard a lot of support for our ongoing guidance from public health partners, from other clinical and laboratory partners as well. But as part of the consideration in not requiring a negative test after these 5 days because there aren't enough tests to go around in this country? You know, we make these recommendations in the context of science, in the context of ongoing epidemiology, in the context of what is feasible in collaboration with our public health and local and state public health partners. And through that discussion and through the discussions within CDC with our own subject matter experts and with the FDA, we made the recommendation, you know, these tests are actually not authorized for the purpose of evaluating contagiousness. Listen to this, listen to this. Listen to this. Here we caught her. Here we caught her. I hope, Dr. Kushwaha, now you will concentrate on this. They are not going to evaluate contagiousness. Then why the hell you need this test? The FDA, we made the recommendation, you know, these tests are actually not authorized for the purpose of evaluating contagiousness. Not authorized for evaluating contagiousness. I think the entire world has seen this. Now I need not. Everything will be blah blah after that. In 5 days only, they are saying now. They have come back. You test antigen and then you go out. That is what CDC. And you don't need. Then later also she said that also. Is this enough? That's up. I think this we are very clear to the world. Then they said there are people who have died. They have died because of comorbidities in spite of vaccination. Again after that she says you go for booster doses. Now, very big exposure on the screen, you have seen very clearly stating, I'll just play it once again, because coming up from her small, let me just within CDC with our own subject matter experts and with the FDA, we made the recommendation, you know, these tests are actually not authorized for the purpose of evaluating contagiousness. I want to ask you about those encouragements. Not authorized for the evaluation of contagiousness by FDA and the CDC states, and why the hell these tests? Now straight away we'll get into the discussion. You have an interesting presentation from Dr. Kushwaha ji. Don't go away.
You will really enjoy it. I think we have laid the enough base. See how world is fooling you. Yes, sir. I'll Can make you you a make me present. the presenter? Can you make me the Yes. presenter and I can share the screen? Yeah. He's not a tyranny, sir. Very ambiguity. They cannot test. I mean, evaluate the contagiousness. Then why the hell you need this test? अब हिंदी में क्या बोलूं साहब, लोगों को डैश डैश बना रहे, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं आप, क्योंकि हम सीडी से लेते हैं और सीडी से हमारे भारत, या गो अहेड, हमारे लोगों को एक टेस्ट मैप बनाया, क्योंकि हम काफी लोग टीबी और मलेरिया और उससे ज्यादा, जब कुशवाहा जी स्टैटिस्टिक्स के साथ बताए, उससे मरते हैं, कोई भी हमारे फ्लू से या उससे नहीं मरते, लेकिन वहां पर ज्यादा क्योंकि उनकी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, हमारे ऊपर बूस्टर, इस तरह का बूस्टर हमारे ऊपर प्रयोग किया जा रहा, और वो भी वो टेस्ट गलत टेस्ट, वहां पर कुछ भी नहीं है, वो तो खुलासा करिए. यस सर, प्लीज गो अहेड. I'll just do that. Such a big exposure. We'll see what government will do in case of Bengaluru and this CDC latest exposure. How is Indian Council of Medical Research will come out clean in regards to these tests. When they cannot evaluate the contagiousness, why the hell you are doing this test? That means all this drama bazi which is happening with politicians and celebrities is just to create panic and fear in the society, because it doesn't test contagiousness. Yes, sir, go ahead. Yes, sir. I'm just making it the slideshow. Yeah, please. Can you see now? Yes, wonderful. So, to start with, the COVID-19 in the last 2 years and still counting has undergone tremendous, I would say, changes in terms of the waves, wave 1 coming, then wave 2 coming, and then wave 3 and wave 4 and wave 5, and so many countries, different waves coming at different times. The facts have changed in these waves and with the time, and this is something which is really surprising, because basics of infectious disease epidemiology या संक्रमित बीमारियों के बारे में जो पहले से हम लोगों को जानकारी है, उसके जो मूलभूत तत्व जो होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो आदर्श होते हैं, वो बदलते नहीं है. आमतौर पे वो सेम रहते हैं, चाहे वो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज क्यों ना हो. और उन्हीं फैक्ट्स को बदलते हुए इन्होंने हर बार अपनी पॉलिसीज को बदली किया है, जो मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन पॉलिसीज या तो आपकी बहुत पहले गलत थी तो आपने चेंज करके ठीक करने की कोशिश करी, या जब चेंज करी तो तब भी गलत थी, फिर दोबारा चेंज की, फिर तीसरी बार चेंज की. तो जैसे कि आज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, हमारी जो पॉलिसी ऑन टेस्टिंग जो आईसीएमआर ने अभी चेंज की है अभी 10 जनवरी को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बट सबसे ज्यादा जो मुझे तकलीफ हुई है इस पैंडेमिक के 2 साल के दौरान, वो हुई है कि साइंस ही बदली हो रही है. पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी साइंस ऑफ पैंडेमिक वाज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो कि हमारे हजारों साल का एक्सपीरियंस था, उसकी जो साइंस थी पैंडेमिक की, वो ही हमें पूरी बदली होती हुई नजर आई है. और ये बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, क्योंकि बेसिक साइंसेस चेंज नहीं होती, चाहे वो हम साइंस करें डायग्नोसिस का, चाहे हम साइंस करें बात इम्यूनिटी का, चाहे हम वैक्सीन की साइंस का बात करें, चाहे नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें. ये जो बेसिक्स है ये नहीं बदलते हैं. पर ये जिस तरह से यहाँ चेंज हुआ है, कर्टसी WHO CDC ने जो बार बार फ्लिप फ्लॉप किया है, उसके कारण बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ये समाज पूरे डिवाइड हो गए. इसमें डिवाइड इसमें हो गया कि एक लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं कि वो साइंस जो कि CDC WHO बताता रहता है, और एक जो दूसरी साइंस है जिसमें कि हम लोग साइंटिस्ट वो है जिनका कि कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी बेसिक्स ऑफ
साइंस जो हमें पढ़ाए गए अभी तक, हमने जो ज्ञान लिया है, जो हजारों साल का ज्ञान है, उसका जो साइंस है, ये डिवाइड हो गई सोसाइटी। एक तरफ वैक्सीनेटेड, एक तरफ अनवैक्सीनेटेड, एक तरफ प्रो वैक्सीन, एक तरफ एंटी वैक्सीन, इस तरह से डिवाइड हो गया। और डिवाइडेड सोसाइटी को रूल करना बहुत आसान होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये वो जो गेम है डिवाइडेड सोसाइटी का, ये हमको समझने की जरूरत है। और हमें ये समझना है कि हम डिवाइडेड ना होकर अब हम एक साथ इस चैलेंज को फेस करें। ये एक लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट कह लीजिए या एडवाइजरी कह लीजिए फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, जो मैंने उसकी साइट से ही निकाली है। इसमें आप देखेंगे तो जो इसका टाइटल है, कोरोना को हराना है तो इन आदतों को अपनाना है। मैं रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? हाँ, ये तो एक ठीक से मास्क पहने और साथ में यहाँ पर बार बार हाथ धोइए, उचित दूरी बनाए रखे। वही एसएमएस, बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन, इजंट इट? एसएमएस हम जिसे बोलते हैं। या इसमें कोरोना को हराने के लिए इसका मतलब वैक्सीन का जरूरत नहीं क्या? तो वैक्सीन कहाँ है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। वंडरफुल, इसका मतलब वंडरफुल साहब। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज नॉट कन्विंस्ड कि वैक्सीन का कोई रोल है हराने में कोरोना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताना पड़ेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डीसीजीए, हर एक मुख्यमंत्री और हर एक राजनीतिक दल इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी जो बूस्टर की एडवाइस करे हमारे प्रधानमंत्री को, आप मतलब बताना हम अगर चाहिए। ये करेंगे तो हम कोरोना को हरा सकते हैं, ये मैं मान के चलूं? अगर ये मैं मान के चलूं, इसका मतलब फिर वैक्सीन का रिक्वायरमेंट नहीं है मेरा। अगर कोई अच्छा सा, अगर ये बनाना होता किसी से अच्छा होर्डिंग बनवाना होता, तो मैं इसमें लिखता कि ये तीन चीजों के बीच में एक ट्रायंगल बनाता, उसको लिखता मैं वैक्सीन। कि भाई अगर आप वैक्सीन में बिलीव करते कि वैक्सीन बहुत जरूरी हथियार है कोरोना को हराने में, तो वैक्सीन को बीच में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं है इसमें। तो या तो ये आपका जो होर्डिंग है, जो पोस्टर है, वही गलत है अपने आप में, या फिर आपका विश्वास नहीं है इस वैक्सीन के अंदर। कुछ तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने जो आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है न्यू टेस्टिंग स्ट्रेटेजी व्हिच हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली बाय द आईसीएमआर, दैट इज ऑन 10th of January। हम आज इस टॉपिक पे ये समझेंगे कि आखिर ये जो नई पॉलिसी है वो है क्या, और इस पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस क्या है, इस पॉलिसी के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे और इस पैंडेमिक के ऊपर होंगे, और ये पैंडेमिक को कैसे प्रभावित करेगा, और आगे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। इससे पहले कि हम लोग इस टेस्ट के ऊपर जाए, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में करंट सिनेरियो है रिगार्डिंग दी जो करंट सिनेरियो चल रहा है दुनिया में और हिंदुस्तान में भी, उसमें आप देखेंगे तो ग्लोबल सिनेरियो यानी कि वीक जो 3rd to 9th जनवरी के बीच का जो वीक है, उसमें एक हफ्ते के अंदर 15 मिलियन न्यू केसेस हैव बीन डायग्नोस्ड, which is a jump by 55%. So that is what is happening, mostly driven by Europe. यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, फिर दूसरा है यूएसए, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडिया का भी है। अभी आप देखेंगे इसमें बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि इतना केसेस बढ़ने के बावजूद भी जो डेथ रेट्स हैं वो तकरीबन स्टैटिक चल रहा है, हफ्तों में वो सिमिलर है। तो ये चीज देखने वाली है कि जो डेथ रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कई लोग ये बोलेंगे कि जी अभी केस आज इस हफ्ते में बढ़े हैं तो उसका इफेक्ट आपको अगले हफ्ते में दिखेगा। तो अगर पिछले हफ्ते का डेटा उठा के देखेंगे तब भी यही पैटर्न आपको दिखाई देता है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन डेथ रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आप कह लीजिए या तो वही रह रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो एज ऑन 9th जनवरी 304 मिलियन कंफर्म केसेस और 5.5 मिलियन डेथ्स को रिपोर्ट किया गया है।
मैं आपका ध्यान इन दोनों फिगर्स पे ले जाना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि जो 304 मिलियन कंफर्म्ड केसेस है, इसका डेफिनेशन है 304 मिलियन RT-PCR पॉजिटिव. They do not represent people who were sick. They do not represent people who were in the hospital, because only very small fraction of these people were sick, and even smaller fraction was there in the hospitals, and of that 5.4 million deaths have been reported due to COVID. Again यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि जो 5.5 मिलियन डेथ्स को रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि आपने रेड्डी साहब ने ऑलरेडी बताया, कि CDC ने खुद एडमिट किया है, इसमें से ज्यादातर डेथ्स जो है जो यूएस में अंदर हुई हैं, और वही पैटर्न बाकी जगह भी होगा, उसमें 75% तो ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी थी, जो बहुत एजेड थे, जिनको अदरवाइज भी किसी न किसी बीमारी से मरना था. तो ये जो है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो डेथ का आंकड़ा है वो भी काफी क्वेश्चनेबल है कि ये कोविड से डायरेक्टली कॉज्ड डेथ है कि नहीं है. वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर ज्यादा आज मैं बात नहीं करूंगा. फिलहाल हम लोग आज से अपना इसके ऊपर बात करेंगे, टेस्टिंग के ऊपर करेंगे. ये आगे आपका 11 जनवरी का डेटा है, वही सेम मैंने आपको बताया, और जैसे कि बताया कि अगर आप इसमें स्लाइड में आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज ये हो गए 308 मिलियन केसेस. तो जैसे मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं कि ये केसेस नहीं है, ये इन्फेक्शंस हैं. और पहला चीज ये है कि ये बीमार सारे नहीं हैं, इसमें से कई सारे एसिम्प्टोमेटिक भी होंगे. दूसरी चीज ये है कि इसमें और कोई टेस्टिंग ना होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ कोविड ही था या इन्फ्लुएंजा नहीं था. जैसे कि CDC ने 31 दिसंबर को अपना RT-PCR, जो सिंपल RT-PCR जो कोविड डिटेक्ट सिर्फ करता था, उसको विड्रॉ कर लिया है, और उन्होंने मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा और कोविड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो चालू किया है. तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में काफी जो है चीजें ऐसी है जो कि डाउटफुल है. फिर डेथ्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफी सारी डेथ्स को ये लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसके कारण हुई है. वो कोई भी और इन्फेक्शन होता तब भी होती, तो ये सिर्फ कोविड है, ऐसा कुछ कोविड के कारण डेथ हुई है ऐसा नहीं है. व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग हियर इज, हमारा दुनिया का पॉपुलेशन 7 बिलियन है. अभी तक 9 बिलियन डोजेस, आई थिंक अब तो शायद 10 तक पहुंच गई ये फिगर, 10 बिलियन डोजेस लगाए जा चुके हैं. ये अनप्रेसिडेंटेड है. एक ऐसी बीमारी जिसका सर्वाइवल 99.997% है लेस देन 60 इयर्स में, और इवन 60 इयर्स एंड अबव में 99.9 है, वहां पे भी अगर हमें 10 मिलियन डोजेस लगा रहे हैं और उसके बाद भी ये बीमारी रुक नहीं रही है, अभी तक काउंटिंग चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. अब आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं. FDA के एक जो एक्टिंग हेड है, उन्होंने कहा मोस्ट पीपल आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड विद COVID-19. इसका मतलब क्या है? आप चाहे मास्क लगाइए चाहे मत लगाइए, आप चाहे बूस्टर लीजिए, वैक्सीन लीजिए या मत लीजिए, आप चाहे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे नहीं करेंगे, लॉकडाउन करेंगे नहीं करेंगे, अल्टीमेटली एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड. और यही बात तो हम आपको शुरू से ही कह रहे थे. एक बार वायरस पैंडेमिक हो जाता है, फिर आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि कौन इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसने फैलना ही है. और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें कई लोग मरेंगे और कई लोग जो है उससे इम्यून हो जाएंगे और पैंडेमिक खत्म हो जाएगा. तो जो पैंडेमिक बहुत पहले खत्म हो सकता था, उससे हम घसीट रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं. और यही बात घूम फिर के बात अभी FDA कर रहा है. इंडिया के बारे में हम अगर थोड़ी सी बात करना चाहें आज, तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद थर्ड वेव चल रहा है इंडिया का, जो मुझे बहुत इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क में लगा सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा टेस्टिंग इंडिया में करेंगे उतना ही आपको ये वायरस आज भी मिलेगा, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, क्योंकि यह भी ये वायरस हमारे कम्युनिटी के अंदर अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है. और ये भी एस्टेब्लिश्ड है कि ये वायरस का इम्यूनिटी बहुत दिन तक नहीं रहता है,
खासकर वैक्सीन इंड्यूस्ड जो इम्यूनिटी है वो बहुत दिन तक नहीं रहता है, तो आपको री इन्फेक्शन होते ही रहेंगे। तो ये जो थर्ड वेव या फोर्थ वेव का हम बात जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक सॉल्यूशन है, बिकॉज एक एंडेमिक वायरस की localized outbreaks, localized increase in cases continues to occur because of falling immunity. तो आज अगर 135 करोड़ जनता में 1.68 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हों, जिनको कोई लक्षण नहीं है, तो सिवाय ये थर्ड वेव का डर लगाने के अलावा हमको और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम हो रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और सबसे जो एक रिसेंट अभी जो चीज हुआ है वो है कि पहले 15 से 17 लोगों में वैक्सीन का रोल आउट किया गया था, अब 12 से 15 में भी कर दिया गया, यानी 12 से अब 17, यानी 18 साल से जो नीचे लोग हैं, 12 साल से या उससे ऊपर है, उनको लिए भी वैक्सीन रोल आउट इंडिया में कर दिया गया है, जिसके साथ मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ कि ये सही कदम है। ये आपको सबको पता है, जो पुराना एक्सपीरियंस है विद ओमाइक्रॉन। मैं रेड्डी साहब आपके पुराने शो में ये चीज शायद ओमाइक्रॉन जब नया खबर आया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी बातचीत करी थी और शायद पॉसिबली मैंने इसके ऊपर बात करी थी, तो मैंने ये कहा था कि लोग इसे एनिमी समझ के इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये बाद में फ्रेंड निकले, और इसीलिए मैंने उस टाइम में याद होगा आपको फ्रेनेमी वर्ड यूज किया था कि एनिमी विच इज एक्चुअली अ फ्रेंड बट वी आर परसीव्ड एज एनिमी। एंड ये बात आज दुनिया के हर बड़े कोने से हर बड़े साइंटिस्ट ने ये बात कही है कि ओमाइक्रॉन इज द सेवियर ऑफ दिस मैनकाइंड, और प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी द नेचुरल वैक्सीन फॉर दिस वर्ल्ड, एंड प्रोबेबली दिस हैज कम टू एंड द पैंडेमिक। बट कुछ एजेंसीज ऐसी है जो अपने स्वार्थ के लिए इस पैंडेमिक को कंटिन्यू करना चाहती है, और वो कह रही है हम ओमाइक्रॉन का भी वैक्सीन बनाएंगे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कि रेलिवेंट है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। कोरोना वायरस के बारे में जो अभी नई स्टडी आई है वो बोलती है कि विद इन 20 मिनट्स ऑफ बिकमिंग एयरबॉर्न, यानी आपके यहाँ से निकला तो 90% उनकी इन्फेक्शियस जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं, जो पहले हमें डराया गया था कि वो इतने घंटे तक यहाँ सर्कुलेट करता है, यहाँ होगा, लोगों को हो जाएगा, हवा में जाएगा, ये सब जो है किसी भी आधार का नहीं है। और इसी के कारण सीडीसी ने, अभी आपने देखा होगा, ये अपने पूरे पैमाने या पैरामीटर्स चेंज कर रही है कि पहले 10 दिन का आइसोलेशन करते थे या 5 दिन का करते थे। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे साइंस इज रिगेनिंग इट्स लॉस्ट ग्राउंड। पीपल विद हाई लेवल्स ऑफ टी सेल फ्रॉम कॉमन कोल्ड्स आर लेस लाइकली टू कैच कोविड, ये भी एक स्टडी में साबित हुआ है। तो ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि कॉमन कोल्ड जो होता है वो कई वायरसेस से हो जाता है, उसमें से 4 तरह के ह्यूमन कोरोना वायरसेस पहले से ही ह्यूमैनिटी में सर्कुलेट करते हैं, और उनके द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उससे हमें इस नए वायरस के खिलाफ क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है। और उसका जो हमको पहले से अगर एक्सपोजर होगा तो हमारे को, इसीलिए जो आज 70-80% को जो सिम्टम नहीं आ रहे हैं वो इस फैक्ट के कारण आ रहे हैं, इस फैक्ट के कारण आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ने उसको या तो देखा हुआ है, और या हमारे बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी है जो उसको आसानी से हैंडल कर सकती है। ये रेड्डी साहब ऑलरेडी शायद बता चुके हैं कि इसके खिलाफ अब धीरे धीरे दुनिया में काफी प्रोटेस्ट और वो हो रहे हैं, जो मैंडेट्स हैं, अननेसेसरी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो जबरदस्ती लोगों को किसी चीज के लिए बातें करती हैं, चाहे वो टीका हो चाहे वो लॉकडाउन हो, उसके खिलाफ काफी ज्यादा जो है दुनिया में आवाज उठ रही है। और ये बहुत वेलकम स्टेप है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अभी तक हम 2 साल तक ये जो लोगों की बात मानते रहे, गवर्नमेंट्स की बात मानते रहे, वो हमारे भले के लिए नहीं था। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो आजकल के हैं वो जो है जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट मैंडेट्स है ऑन वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, ये अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक कंसेंसस बन रहा है कि जो बच्चे लो रिस्क चिल्ड्रन है, यानी हेल्दी बच्चे हैं,
उनको ये वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और यही बात हम कई बार बता चुके हैं कि कोई भी चाइल्ड वैक्सीनेशन इंडिया में देने का जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल 2-3 कारण है इसके। नंबर 1 कारण ये है कि बच्चों को ये इन्फेक्शन ऑलरेडी 80% बच्चों को ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के अंदर। दूसरा चीज है, बच्चों में इस बीमारी के खिलाफ बेटर क्षमता होती है, उनके अंदर इस रिसेप्टर्स की भी कमी होती है, जिसके कारण उनको ज्यादा इन्फेक्शन नीचे तक नहीं जाता है, जो कि मेन चीज है जिसको इन्फेक्शन को लंग्स तक पहुंचाता है। दूसरा तीसरा चीज है, बच्चों में थाइमस वेल डेवलप्ड होता है, जिसके कारण भी हमारी जो इम्यूनिटी है इन चीजों को हैंडल करने में अच्छी होती है बच्चों में। तो ये जो है 3-4 कारण है जिसके कारण बच्चों को, हेल्दी बच्चों को कोई भी वैक्सीन की अभी जरूरत देने का नहीं है। और इसके खिलाफ काफी विदेश में भी और हमारे देश में भी काफी ओपिनियन बन रहा है। लेट अस सी हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड। ये पुराना एक वो है, जापान ने, आपको पता ही है कि वैक्सीन रोल आउट बिल्कुल वॉलंटरी कर दिया है, यानी कि किसी को भी आदमी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। और वो बोलते हैं कि जो लेना चाहता है उसको पूरी जानकारी दी जाएगी, अगर वो लेना चाहे तो लेगा, नहीं लेना चाहता तो नहीं लेगा। तो ये सब चीजें इसी तरह जापान और ऐसी कंट्रीज हैं, उनके मॉडल को ही हमें दुनिया भर में रेप्लिकेट करने की जरूरत है। अब आज की जो टेस्टिंग पॉलिसी, जो कि मेन टॉपिक है आज का, उसके ऊपर हम लोग बात करें। स्कोप क्या है इस पॉलिसी का? जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि सिम्प्टोमेटिक केसेस को जल्दी से ट्रीट करना, जल्दी से उनको आइसोलेट करना और उनका इलाज करना। और यही चीज अगर पहले दिन से हम करते तो ये बीमारी या ये जो कोविड का दानव हमने जो पैदा कर दिया वो शायद नहीं होता। खासकर जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी कम्युनिटी में एस्टेब्लिश हो जाता है तो यही हमें करना चाहिए था तब। और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में बहुत पहले से हो गया, लेकिन ना तो WHO ने उसको माना, ना हमारे गवर्नमेंट ने उसको माना। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक तरह से है आज की तारीख में, अगर हम ये कह रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन एल्डरली एंड इंडिविजुअल्स विद कोमॉर्बिडिटीज, यानी जो मैं बात शुरू से कह रहा था, सिर्फ हमको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर? वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर, जिनमें गंभीर बीमारी होने का खतरा है। और वो अब जो है इस टेस्टिंग पॉलिसी के द्वारा ही टारगेट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप मैं कहूंगा गवर्नमेंट का, जो ये पॉलिसी के अंदर चेंज आया, भले ही वो थोड़ा सा लेट आया लेकिन आया जरूर। अब ये टेस्ट तो आपको पता ही है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें। होम और सेल्फ टेस्ट है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और RT-PCR कॉमनली सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। मेरा एक पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि जो होम और सेल्फ टेस्टिंग है, दिस शुड बी विथड्रॉन। ये इसको जो है वापस ले लेना चाहिए। इसको हमें, ये बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड है। इससे क्या होता है कि सेल्फ टेस्टिंग से एक तो आदमी अपने आप को बार बार टेस्ट करेगा, और उसके अंदर जो एक पैनिक और जो फियर है वो हमेशा बना रहेगा। और दूसरा इशू होता है सेल्फ टेस्टिंग में फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का। ये भी जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इसको हमें मेरे ख्याल से वापस लेना चाहिए। इसको हमें होम केयर जो होम सेल्फ टेस्टिंग है वो बंद कर देनी चाहिए। अभी कौन टेस्ट किया जाएगा, या आपको एक एक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। इनका जो ICMR पॉलिसी है वो ये कहता है हु मे बी टेस्टेड, ये नहीं कहता हु विल बी टेस्टेड, ये कहता है हु मे बी टेस्टेड। इट इज नॉट नेसेसरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीज बहुत समझने वाली बात है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो इधर पे जो मे है वो जानबूझ के यूज किया गया है कि कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आपको ये सब करो, लेकिन आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिटी सेटिंग में एक तो है, और दूसरा है हॉस्पिटल सेटिंग का टेस्टिंग। कम्युनिटी सेटिंग में वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ जिनको लक्षण आ रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक है, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत माइल्ड सिम्टम है, अगर वो टेस्ट नहीं करा रहा है, उसे आप फोर्स नहीं कर सकते, और आपको टेस्ट नहीं करने के लिए भी कोई जरूरी नहीं है, ना ही आप उसको आप मैंडेटरी है। दूसरा चीज है एट रिस्क कॉन्टेक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस। ये समझने वाली बात है। एट रिस्क यानी कि ऐसे कॉन्टेक्ट
जो किसी केस के पॉजिटिव केस के संबंध में नजदीक में नजर आए हैं, लेकिन उनको खतरा है कि गंभीर बीमारी होने का। अब वो कौन लोग हैं? 60 साल से ज्यादा लोग, या जिनको 2-3 तरह की बीमारी अगर उनके अंदर है, तो ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को टेस्ट आप कर सकते हैं अगर जरूरत है। फिर अगले लोग जिनको टेस्टिंग की जा सकती है वो इंटरनेशनल ट्रेवल है, वो तो खैर ऐसी चीजें, वो इंटरनेशनल है तो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेवलर्स अराइविंग ऑन इंडियन सॉइल, कायदे से देखा जाए तो आज इंटरनेशनल ट्रेवल में भी देखा जाए तो मैं तो इसकी जरूरत नहीं समझता, लेकिन चूंकि ऐसी चीजें वो इंटरनेशनल लॉज हैं, आपस में एक दूसरे कंट्री का अपना जो मैंडेट्स हैं उसको हम ज्यादा चीज नहीं कर सकते, पर कायदे से देखा जाए मेरे हिसाब से तो आज इनका कोई मीनिंग भी नहीं रह गया है। जिस तरह से ये बीमारी पूरे दुनिया में हर देश में हर जगह ऑलरेडी एंडेमिक है, तो अब हम इसको लेकर के कुछ अचीव नहीं कर रहे। बट एनीवे, दिस इज अनदर इंडिकेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो शब्द ध्यान देने की, एक तो मे बी टेस्टेड, इट इज नॉट विल बी टेस्टेड, इसमें फर्क है। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो नहीं भी कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर कहाँ किसको टेस्ट किया जाएगा, ये बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया चीज इन्होंने इस पॉलिसी में डाली है कि दिस टेस्टिंग विल बी डन एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। और एक बहुत अच्छे इसके अंदर जो चीजें आई हैं वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। आई रियली अप्रिशिएट, आई विश दिस कुड हैव कम लिटिल अर्लियर, बट एनी हाउ आज भी अगर आया है तो बहुत ही इसका स्वागत योग जो ये चेंज आया है टेस्टिंग क्राइटेरिया में। सबसे पहली बात तो किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए रोका नहीं जा सकता बिकॉज टेस्ट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कई लोगों को देखा जिनको इमरजेंसी में जरूरत थी, लेकिन उनको हॉस्पिटल से वापस भेज दिया जाता था बिकॉज उसके पास रिपोर्ट नहीं होती थी आरटीपीसीआर। कैंसर पेशेंट, किसी को डिलीवरी होना है, ऐसे लोगों को वापस हॉस्पिटल से जाना पड़ता था। ये बहुत ही गलत हो रहा था, जो इस टेस्टिंग पॉलिसी से बहुत बढ़िया से एड्रेस हो गया है कि किसी भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स को आप रोक नहीं सकते हैं बिकॉज टेस्टिंग नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर उसका नहीं हुआ है तो आप चाहें तो वहां कर सकते हैं, लेकिन आप उसे रेफर नहीं करेंगे किसी और फैसिलिटी में कि आप वहां टेस्ट करा के तब लाओ, हम तब आपका मैनेजमेंट करेंगे, ये नहीं कर सकते। तो अगेन इट इज pro patient testing policy has been brought in, and this is a huge I would say milestone in this pandemic and very welcome step। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो भी होंगे, चाहे उनको कोई सर्जरी हो रही हो या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा हो, चाहे वो लेडी है जिसको लेबर में जा रही है, उनको कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है जो किसी भी लक्षण के साथ नहीं आए। और अगर टेस्ट जो लोग आपके एडमिट है किसी भी बीमारी के लिए, उनको आप हफ्ते में एक बार से ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते कोविड के लिए, ये भी आया। पर अगर कोई चीज है ही नहीं, अगर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते। तो ये बहुत अच्छा चीज हुआ है। अब ये इम्पोर्टेंट, और वो जो पहले हुआ वो अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छी चीज हुई है कि अब किस किस को टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। पीपुल हु नीड नॉट बी टेस्टेड, यानी कि अब इनको करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर कोई कर रहा है तो पेशेंट उसके खिलाफ वो कर सकता है कि मेरा आप टेस्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल इन कम्युनिटी सेटिंग, जैसे कि अभी आपने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बच्चे का शायद वो या तो टेस्टिंग के लिए जबरदस्ती ले जा रहे थे या उसको एग्जाम के लिए लेके जा रहे थे, टेस्टिंग कराना चाहते थे। ऐसे लोग वो मना कर सकते हैं कि मेरे को टेस्टिंग नहीं करानी है बिकॉज मेरे को कोई लक्षण नहीं है। दूसरा चीज है कि कोविड जो कंफर्म केस है उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर वो हाई रिस्क नहीं है तो उनको भी आपको टेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। और जो लोग डिस्चार्ज जा रहे हैं तो उसके बाद डिस्चार्ज के बाद जो पहले टेस्टिंग करते थे वो भी अब कोई करने की जरूरत नहीं है होम आइसोलेशन के अंदर। अगर वो फैसिलिटी से कोविड-19 फैसिलिटी से डिस्चार्ज आते हैं तो रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी के अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, और इसमें एक ही आदमी को करते हैं। वो होता है कि अगर उसका ओमाइक्रॉन पॉजिटिव आ गया है तो ही उसको दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते।
बाकी लोगों को जो माइक्रो नेगेटिव है उनको हम दोबारा से टेस्टिंग नहीं करते। और एक अच्छी चीज जो कि आ गई है वो इंटर स्टेट डोमेस्टिक ट्रेवल में अब आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। अब इतने सब अच्छाई के बाद इस पॉलिसी में कोई कमी भी है क्या, वो हम देखेंगे। कमी ये, पूरी पॉलिसी इतनी अच्छी है लेकिन इसके अंदर एक बड़ा कैच है, स्टेट कैन फ्रेम देयर पॉलिसी। अब आंध्रा चाहेगा वो करेगा, तेलंगाना चाहेगा वो करेगा, महाराष्ट्र चाहेगा वो करेगा। अगर उसका सरकार इसका सरकार अलग अलग पार्टी का है तो बोलेगा मैं उसका आदमी इधर नहीं आने दूंगा, मेरा आदमी उधर नहीं जाने दूंगा। तो ये जो एक है वो एक बहुत बड़ा कैच है। तो इससे बड़ा समस्या आ सकता है कि भाई अपना अपना स्टेट अपना अपना तरीके से पॉलिसी बनाएगा, उससे लोगों को परेशानी हो, इससे लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि अब वो कोर्ट नहीं कर सकते कि तो आईसीएमआर का गाइडलाइन के हिसाब से हम नहीं जा रहे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्लॉज डाल दिया है, ICMR's advisory generic in nature and may be modified as per discretion of the state health authorities for specific public health and epidemiological reason. रीजन तो आपको कोई देगा नहीं, लेकिन आपको अगर कोई चीज बोलेगा कि नहीं हमारा तो स्टेट का ये लॉ है तो हम तो आपको करेंगे। ये एक इसकी एक कमी है जो इस पॉलिसी के अंदर, अदरवाइज ये बहुत अच्छी पॉलिसी जो अभी इन्होंने लाई है, इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई है। लेकिन एक ही है कि अब स्टेट जो है अपना अपना दादागिरी चला सकता है। ये रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो घर में करते हैं उसके लिए है, जिसके खिलाफ मैं पहले ही बता चुका हूँ ये अच्छी चीज नहीं है। इससे लोगों में पैनिक बढ़ने के अलावा, ज्यादा बार बार हाइपोकॉन्ड्रियक होने के अलावा कि बार बार टेस्ट करना, जब भी उसको कुछ भी होगा किसी के साथ भी आएगा कोई पॉजिटिव आ जाएगा फिर दोबारा टेस्ट करेगा, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है। तो एनीवे अगर उन्होंने लाया है तो शायद ये बाद में बंद हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अब ये पॉलिसी का जो इम्प्लीकेशन क्या है, इसके लिए क्या मायने हैं, ये लोगों के लिए क्या जो फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहला तो इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको लक्षण नहीं उसको टेस्ट नहीं, सबसे बड़ा फायदा। और ये जो बिना लक्षण के जो लोग हैं ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इस पेंडेमिक के अंदर। तो मैं अगर आज ये प्रेडिक्ट करूं कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ये पेंडेमिक नीचे आ जाएगा तो शायद ये अच्छा रहेगा। टेस्टिंग हाई रिस्क कॉन्टेक्ट, ये एक अच्छा चीज आया है कि अब ये हर एक को टेस्ट न करके सिर्फ हाई रिस्क कॉन्टेक्ट को कर रहे हैं, तो ये हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन इसको टारगेट करता है, बहुत अच्छी चीज। अब एक तरह से देखें तो जो जिसको लक्षण नहीं आ रहे हैं वो कॉन्टेक्ट्स में, उनको अब हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वर्चुअली आउट हो गई। एक तरह से इसका मान लिया है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, जिसको बहुत पहले मान लेना चाहिए था पर आज मान लिया गया। दूसरा चीज जो एक तरह से मान लिया वो ये है कि अब ये वायरस हर जगह है और अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी एक्सेप्टेंस एक तरह से धीरे धीरे आ रहा है। Let nature takes its own course, stop mandate, curfew, lockdowns, etc. ये जो है धीरे धीरे लोग बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन तकरीबन अब ये चीज समझ गए हैं कि ना तो ये कर्फ्यू से फायदा होने वाला है, ना लॉकडाउन से होने वाला है, ना जबरदस्ती किसी को बंद करने से फायदा होने वाला है। अब धीरे धीरे ये पैंडेमिक अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और ओमाइक्रॉन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस पैंडेमिक को अंत की तरफ ले जाएगा और उसके लिए किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, जो लोग बीमार पड़ते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ हाई रिस्क लोग हैं उनको ही आप वैक्सीनेट करें, उनको ही बूस्टर वगैरह का जरूरत है। हेल्दी लोगों को मेरे हिसाब से तो कोई भी वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि या तो वो पहले से रिकवर हो चुके हैं नेचुरल इम्यूनिटी से, या उनको वैक्सीनेशन ऑलरेडी 2 मिल चुके। दैट इज ऑलरेडी सब। Yeah, wonderful, wonderful, wonderful. So neatly you have presented. I hope You can stop everyone will my understand. screen. You can stop me. Thank you. Yeah. I hope I've been able to clearly spell out the pros and cons and the implications of this. काफी अच्छी तरह, इसीलिए काफी लोगों ये बोल रहे कि हमारे स्टेट में और भी टेस्ट चल रहा है, इसीलिए हम यही बोल रहे थे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक हाथ से दिया
दूसरे हाथ से राष्ट्र ने, केंद्र ने दिया, राष्ट्र ने लिया। फाइनेंस तो इस मिनिस्ट्री तरह किधर के है? फाइनेंस मिनिस्ट्री किधर है? लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर ये पूरी जो बढ़ने के बाद आप राष्ट्र सरकार को प्रश्न कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट आपके मदद नहीं कर रहे, उनको भी ये आधार देके तो वहां पर आपका हक का उल्लंघन का आप प्रस्ताव कर सकते हैं और आपको वहां रक्षा मिली। आपके पास एक राइट तो है प्रोटेस्ट करने का कि देखिए आईसीएमआर बोलता है, आप क्यों जबरदस्ती अपना नया वो लगा रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो बोल सकता है कोई प्रोटेस्टिंग के लिए, एक तो उसके बाद डॉक्यूमेंट आया। डॉक्यूमेंट इतने दिन से हम यही बता रहे थे कि कहाँ ये, इसीलिए ये टेस्ट भी क्या है लास्ट टाइम भी बता चुके हैं हम। इवन डेड टिश्यू अगर इसमें भी है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा है इसमें, हम यही बता रहे थे। और अंत में ये डेफिनेटली हम पुनः प्रसार कल करेंगे, सिटीजन्स डॉक्टर टीएसपीआर चैनल में ही होगा, ये यही आएगा, डोंट वरी, ताकि आप लोग सब कुछ अगेन समझ जाए। यप, सो हम अंत में थोड़े बहुत वीडियोस ने भेजी है एक प्ले करने की। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अब तो दवाई भी आ गया, तब भी वैक्सीनेशन से पहले था कि अब वैक्सीन आ गया, 2 वैक्सीन आ गया तब भी। या थोड़ा ऐसे वीडियोस जो लोग भेजते हैं तो हम उसको भी प्ले कर रहे हैं। तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी, ये मास्क हमें बचाने के लिए नहीं है, हमें और बीमार करने के लिए है। ये तो हो गया इसका फिजियोलॉजिकल। चलिए, ये कुछ बताना चाह रहे थे सर ऑलरेडी और देखे। साथ या और यहाँ पर भी और एक इसी कर्नाटक से और एक आया जहां पर एक बड़ी रैली की है शिव कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्र, वहां पर उन्होंने टेस्ट, जब बेंगलुरु के अधिकारी गए वो टेस्ट कराने से मना भी किए हैं वहां पर। वो बोले मैं टेस्ट क्यों करूं, ये मेरा हक बनता है, तो उन्होंने टेस्ट मना कर दिया। लेकिन एक आम आदमी को जिस तरह पीटा गया आप देख चुके हैं। कुशवाहा जी, मैं समझता हूँ आप है वापिस आ गया। Are you there, sir? Yeah, I'm there, sir. Yeah. तो और ये एक वीडियो देखते हैं हम, अगर प्ले होता है या नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जिस तरह हमारे टेनिस स्टार ने फाइट किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ मेजर्स लगाने की दावा करती है, लेकिन वहीं पर I salute this guy. ने बताया मैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड हूं और मेरे को टेस्ट करने की जरूरत क्या, लक्षण ही नहीं है, और मैं वैक्सीन सर्टिफिकेट क्यों दिखाऊं आपको। वो तो उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, why should he show anybody else? इट्स अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, मैं क्यों बताऊं आपको। यही मैं बताने की कोई ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, बहुत कुछ प्रॉब्लम। उसका नाम है जोकोविच का, it starts with Novak. Novak means no vaccine. Novak means no vaccine. Wonderful. So I'm trying to play, but what to do, bhai sahab, you have to understand. Then the messages keep rolling in. तो जिस तरह हमारे टेनिस स्टार ने फाइट किया, जो टफेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, और मेलबोर्न में भी काफी प्रोटेस्ट हुए, मैं आपको बाद में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंत में आप ना डरिए,
आप किस तरह आप जिंदगी बिताना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, क्योंकि हम जानकारी देना हमारा फर्ज है, because we have to provide you correct information which is logical as per constitution, as per rule of law, invoking evidential act. That is what the strength of these channels and wonderful guests like Dr. Arvind Kushwaha from All India Institute of Medical Sciences, Nagpur, have come. So we have presented everything. Now don't worry, you have some document in your hands. You can question anyone. No one can dare stop you when you are traveling in between. And mask also we have shown when president is not wearing, and Madhya Pradesh minister also, and we have shown you so many. Before we say bye, tomorrow this will be retelecasted on Citizens-DRTSPR channel at 8 p.m. Indian Standard Time. Do support Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channel, Environment People Dr. TSPR channel. In spite of so many constraints, we are trying to bring out live show after live show every day, just to keep you informed, and how one good show can definitely change the dynamics of pandemic. Pandemic ऐसी तैसी उसको endemic भी बना देगा, क्योंकि But ऐसे Sugar, अतिथिगण. this I told you long back. Yeah. It is already endemic in India since June 2021. Yeah. It is already endemic. There is no longer a pandemic in India. Somebody may claim, but it is no longer a pandemic in India. It's already an endemic disease. It is endemic. इसीलिए दोनों राष्ट्रों के बीच में या दोनों देशों के बीच में इस तरह की जरूरत नहीं है हमको डरा के धमकाने की. कोई जरूरत. जोविक जो टेनिस स्टार है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में काफी मैंडेट, किस तरह वहां लोगों का गुस्सा, मेलबोर्न में बड़ी रैली थी, वो विजुअल्स में आपको बता नहीं सक रहा हूं, लेकिन क्या नाम है साहब उनका टेनिस स्टार का? नो वैक्सीन. तो So उसी ने never in the history that an epidemic disease act or the disaster management act has been enforced for more than 2 years continuously. Do you think जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है इतने दो एक्ट लगाने से? लोगों के पास जितना मर्जी ताकत है, जब मर्जी किसको हमदर्द कर दे, जब मर्जी किसी को डंडा मार दे, जब मर्जी तब किसी को बोल दे कि तुम ये करो, तुम वो करो. अब हम लोगों को क्या है, मतलब ये जनता, मुझे तो अभी तक इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि अभी जनता सड़कों पर नहीं उतरी है अपने अधिकारों के लिए, चीजों के खिलाफ. और एक वीडियो भी आया, शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करता है इसको. प्रॉब्लम ये है. और एक वीडियो ने भेजा है, वो कहता है कि जस्ट वंस आई वुड लाइक टू सी a reporter say to Joe Biden when he stands at the damn podium in the White House without a mask, Mr. President, why aren't you wearing a mask? Senator Ted Cruz. Fox News में ये बहुत वायरल हो रहा है, वो लोग भी we have received it. I'm not able to play. तो इस तरह काफी आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन जोकोविक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम अपनाएं. Let us have that sportsman spirit of Djokovic. He is the true hero. Fought Australia toughest measures. He said, I am not vaccinated, I am already infected, and I don't need to show you anything except myself. And why should I test? Now he's playing there. Even if Australian government does something mischief, people have large numbers are in the streets of Melbourne, and you have shown you Montreal also. Likewise, everywhere in the world, so many protests. दुनिया में काफी लोग रोड पे आके. He had to go to the High Court to get this. He had to go to the High Court of, I think Sydney, to get this thing that he will continue to play. बस जो भी है आपको बता चुके हैं हम. दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, लोग रोड पे उतर आए हैं, और ये निबंधों के बीच में कोविड-19 के वहां पर ये लोग रोड पे आके अपनी ये जता रहे हैं वहां पर. ये हम कितने दिन और क्यों चाहिए हमको ये सब? तो आप भी चैतन्य बनिए. हर एक नागरिक एक राज्यांग व्यवस्था है, ये भूलना नहीं. एक संविधान जो है हम अपने आप को समर्पित किया. We have submitted constitution to ourselves. Every citizen is a constitutional authority, right from prime minister to honorable chief ministers. They are all public servants because we pay taxes to run the government, and it is in our welfare. Right to life, right to health is our fundamental right. Who can dictate? People yes, sir. Are supreme. That must not be forgotten. People are supreme. I mean, you are buying vaccines from my tax, which I have paid,
and you are asking me that if you don't take this vaccine, I'll again fine you. But this is, can you imagine such a state of affairs? आप बोलते हैं कि आपने वैक्सीन नहीं लगाया, हम आपको यहाँ जॉब से निकाल देंगे, आपको यहाँ नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, हमारे पैसे से वैक्सीन खरीद के हमको जबरदस्ती लगाने का धमकी दे रहे हैं। सोचिए, आप कौन होते हैं हमारे पैसे से और हमारे जीवन को इस तरह शासन करने का अधिकार आपको किसने दिया? हमने वोट डाले और ये राजनीतिक दल जो है हमारे गणतंत्र देश में संविधान के दौर पर चुनाव से जीतने के बाद ये प्रजा प्रतिनिधि है, ये खुद के अपने जॉब से कुछ नहीं दे रही। हम जो टैक्सेस बनते, जो पन हम बनते हैं, क्योंकि आम आदमी भी याद रखिए, जब आम आदमी पार्टी जिस तरह हंगामा कर रहा है दिल्ली में, आम आदमी से दूर हो गया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी जो खरीदता है, मैच बॉक्स से लेके जो भी खरीदता है उसके ऊपर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, नहीं, इनकम टैक्स जो पे करता है उससे ज्यादा आप रोजवारी जो खरीदते हैं उसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं आप। इसलिए आप जानकार हो जाइए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आप किस तरह जीना चाहते हैं। योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, हाउ यू लाइक टू फाइट इट आउट, वी लीव इट टू यू विद दिस वीडियो। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है, अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए। लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है। लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी अ लॉयन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाए। यार आप क्या बनना चाहते हैं हमारे नागरिक, माय वंडरफुल सिटीजन्स? व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम टू प्रोटेक्ट your right to life, your fundamental right to health, and as a citizen you are paying taxes to run these governments. What is that you want to become? आप taxes बन रहे हैं मैच बॉक्स से लेके हर कुछ खरीद के, और ये प्रधानमंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री से लेके माननीय मुख्यमंत्री, ये सब हमारे सेवक हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं, एक हाथी या एक लायन? आपके हाथ में है, क्योंकि आप जिस तरह सोच लगाएंगे उसी तरह आप बनेंगे, और उसी के ऊपर ये महामारी का रुकना या हमको इस तरह एक्सप्लॉइट करना रहेगा। The way you think, you change your attitude, whether you want to become a lion or an elephant,
That is what is going to determine this pandemic once for all. Take care. Yes, sir. Any comments on this before we say bye? I thought I wanted to end with this. I just want to tell people, arise, awake, realize what's happening around you, take your informed decisions about your health, and nobody better than you to take your own decisions. Wonderful. Because there was I'll play this video once again. You want me to play last one? I'll pay you. Last minutes. That's it. मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए, एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी अ लायन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाए यार। फाइन, इवन हमारे को कॉपीराइट का भी अभी जैसे मैसेज भी आ गया, फिर भी वी विल लाइक टू बी लायन, सो दैट हम आप सबको जगाए ताकि आप भी लायन बने, आप भी राजा बने। सो यू बिकम किंग ऑफ योर ओन लाइफ, द लाइफ इज इन योर हैंड्स। सच टाइप ऑफ copyrights and all, nothing is going to change us in public interest. Tomorrow at 8 p.m. on CITIZENS-DRTSPR channel at 8 p.m. Indian Standard Time, this is going to be retelecasted once for all again. Such an important topic. Take care, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks a lot. And we will say Sukha Nidra Shubharatri to all Indians and the world over. Good morning, good afternoon, good night, and good evening. everyone. Stay safe. Yes. Stay healthy. Stay healthy. Wonderful, sir. Take care. Bye.